Good morning, dear students. Today we are discussed about fundamental of plant pathology. What is basic things, basic terms used in plant pathology. जब तक हमें बेसिक नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं जानते. Okay? So basic is very important. Okay? क्या होता है प्लांट पैथोलॉजी क्या है? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज प्लांट पैथोलॉजी, व्हाट इज प्लांट डिजीज, what is fungi, bacteria, virus, viroids. These terms are very important. Okay, so let's start. Today I deliver lecture on fundamental of plant pathology. It is a very important class and it is a basic things, basic terms of plant pathology. So let's start. A human can say problem to doctor, but a plant can't say. You have clear seen this picture. If we are suffered any disease like that cough, fever, we can see easily, we can say easily to doctor, doctor, I am ill, I am suffering from fever, but plant can't say. Okay, so in plants, symptoms, signs, syndromes, after seeing that, we can say this disease in this crop. Then plant pathology. The word pathology derived from two Greek words. Pathology एक Greek word है, derive करेगा two Greek words से, pathologos. Pathos means suffering, logos means study या knowledge. ठीक है, means the study of the suffering plant. Definition: plant pathology is a branch of agriculture, botanical or biological science, because agriculture is mostly belong to crops, botanical also, biological science which deal with the study of causes of the disease, etiology, resulting of losses and control of plant disease. Etiology means which pathogen cause disease. About pathogen, कारण क्या है डिजीज कॉज करने का. ठीक है, रिजल्टिंग ऑफ लॉसेज, कितना लॉस हुआ इकोनॉमिकली, क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज. ओके, अगर हम बात करें क्वालिटी की, आप मार्केट जाएंगे, मार्केट में अगर आप डिफॉर्म फ्रूट देखेंगे तो क्या आप उन्हें प्रेफर करेंगे खरीदना? नहीं. सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इकोनॉमिकली ऑल्सो, लॉस, कंट्रोल ऑफ plant disease. Then later we study about what is the major control, what is the control features used against plant disease. हम कौन से control measurements use ले सकते हैं disease करने में, management करने में. अब यहाँ दो definition आई है, management और control. What is difference between management और control? Management और control, control की अगर हम बात करें, किसी भी डिजीज को हम 100% कंट्रोल करें तो वो क्या होती है? कंट्रोल, यानी कंप्लीटली कंट्रोल. ठीक है, मैनेजमेंट हियर इज नॉट कंप्लीटली कंट्रोल, नॉट 100%. ओके, हमें कोई काम दिया जाता है, हम क्या कहते हैं? मैनेज कर लेंगे. ठीक है, मैनेजमेंट मीन्स मैनेज कर लेंगे, नॉट कंप्लीटली श्योर बट मैनेज कर लेंगे. ठीक है, so objectives of plant pathology. What are objective plant pathology? क्या उद्देश्य है प्लांट पैथोलॉजी के? फर्स्ट वन, टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द डिजीज. पहला उद्देश्य क्या है हमारा? किसके कारण डिजीज प्रोड्यूस हुई है. ओके, सेकंड है क्या मैकेनिज्म है डिजीज डेवलपमेंट की, मतलब डिजीज साइकिल, कौन कौन सी पैथोजेनेसिस जो चेन है उसकी स्टडी करना, क्या मैकेनिज्म है. थर्ड वन, स्टडी द फैक्टर अफेक्टिंग द डिजीज डेवलपमेंट.
कौन कौन से फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है? लाइक दैट होस्ट, पैथोजन, एनवायरमेंट, ह्यूमन, टाइम. So we study about factor affecting the disease development. Fourth one and last one, to develop strategy for economic and efficient management of disease. हमें ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी होगी जो इकोनॉमिक भी हो और एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, यानी लेस कॉस्टली हो. ऐसे नहीं हो कि हमने जो मैकेनिज्म यूज की है डिजीज मैनेजमेंट करने की, स्ट्रेटेजी यूज की है, वो बहुत ही हाई कॉस्टली हो. नॉट इकोनॉमिक मीन्स है लो कॉस्ट. विनोद चौधरी, बीच में डिस्टर्ब मत करो. विनोद चौधरी, अगर आपको कुछ नहीं आता ऑनलाइन में तो शांत बैठे रहो, ओनली लेक्चर सुनो, ठीक है? टू डेवलप स्ट्रेटेजी फॉर इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ डिजीज. इकोनॉमिक मीन्स टर्म्स ऑफ मनी एंड एफिशिएंट मीन्स disease management by IDM, integrated disease management, means eco-friendly management. Not only fungicide use, but also use biological, cultural, physical, all methods are involved to reduce environmental pollution, economically safe, environmentally safe. Okay, then next, importance of plant pathology. What are importance of plant pathology? Plant disease caused by microorganism are of paramount importance to humans. क्यों important है? क्योंकि human, because they damage plant and plant product on which human depend for food, clothing, furniture and housing. जहां तक मैं समझती हूँ हम मोस्ट ऑफ डिपेंड या टोटल डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, फूड के लिए, क्लॉथिंग के लिए, फर्नीचर के लिए और हाउसिंग के लिए. इंसान के लिए 3 चीजें बहुत नेसेसरी है, रोटी, कपड़ा और मकान. ठीक है? रोटी कहाँ से आएगी? गेहूं से. कपड़ा कहाँ से आएगा? कपड़ा कहाँ से आएगा? क्लॉथिंग कहाँ से बनती है? वही, उसका भी इनडायरेक्टली रिलेशन प्लांट से है. एंड मकान यानी फर्नीचर, हाउसिंग. Million of people all over the world still depend on their own plant produce for their survival. Plant disease reduce the quality and quantity of plant produce. Example, wheat bunt caused by Tillandsia species. अगर आप मार्केट में जाओगे, तिलेशिया में कैसे होते हैं? काले काले से सीड दिखेंगे आपको. क्या आप उन्हें खरीदना प्रीफर करोगे? नहीं, क्योंकि उनकी क्वालिटी जा चुकी है. और क्वांटिटी मीन्स जो आपको यील्ड मिलनी चाहिए थी उतनी यील्ड आपको नहीं मिल पाएंगी ड्यू टू डिजीज इंसिडेंस. जहां हमें यील्ड चाहिए 20 क्विंटल, वहां डिजीज के कारण हमें कितनी मिल रही है? 10 क्विंटल. सो क्वांटिटी लॉस हो गया. क्वालिटी के टर्म में बात करें तो एप्पल स्केप आज हमने पढ़ी 3rd ईयर में. आप बाजार में जाओगे, क्या ब्लैक स्पॉट है वो फ्रूट्स खरीदना प्रीफर करोगे? नहीं, फ्रेश, ग्रीन और अच्छे वाले फ्रूट्स प्रीफर करेंगे हम. ओके, देन रिजल्ट इन इंक्रीज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट टू कंज्यूमर. लाइक दैट, एक किसान ज्यादा समझेगा. हम मोस्टली बिलोंग करते हैं किसान फैमिली से. हमारे मान लीजिए गेहूं में लूज स्मेट ऑफ व्हीट है या बंट है या रस्ट है, कोई भी डिजीज आ चुकी है, या वेजिटेबल्स की बात करें हम, सो कितना पैसा खर्च कर देता है एक किसान? बहुत सारे, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा लॉसेज होते हैं उसे. क्योंकि जब वो आप किसी भी प्राइस पूछेंगे, किसी भी, जैसे आज कार्बेंडाजिम की बात करें तो 800 रुपए पर केजी, या किसी भी फंजीसाइड्स की बात करें 1000 रुपए, 800 रुपए, ये तो नॉर्मल रेट है फंजीसाइड्स की. सो इसमें क्या होता है? प्राइस का लॉस होता है. रिजल्ट इन सीवियर पैथोलॉजिकल इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड एनिमल दैट ईट प्लांट प्रोडक्ट. मोस्ट ऑफ today we see that cancer, heart attack, silent attack, even आजकल एक म्यूक्रोमाइसिस डिजीज चल रही है. वो किससे हो रही है? जो हमारे फंजाई में म्यूकर है, राइजोपस एंड म्यूकर. अगर हम ऐसे प्रोडक्ट का सेवन करेंगे, जैसे कि बहुत हजारियस यूज ऑफ फंजीसाइड्स. चोमू में, अगर आप चोमू वाले एरिया में जाओगे, बहुत सारे बच्चे चोमू के होंगे भी,
वो देखते हैं फील्ड में कितने सारे फंजीसाइड्स यूज किए जाते हैं, हम उन्हें बोलते हैं 1 ml पर लीटर, पर वो किसान क्या सोचता है 1 ml यानी एक बूंद तो बहुत कम है, वो डालता है 5 या 7 बूंद उस जगह। सोचिए कितना कितना ज्यादा रेजिड्यूल है, कितना टॉक्सिन भरा हुआ है उसमें। जब हम उसको ईट करेंगे या हम उसे जब यूज करेंगे तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। destroy beauty of environment by damaging plant around home, park, street and forest। कहीं फंजाई है, वुड फंजाई, वो क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है प्लांट्स को, पार्क, स्ट्रीट एंड फॉरेस्ट, और ब्यूटी डिस्ट्रॉय जाती है एनवायरनमेंट की। फ्लावर डिजीज है, बहुत सारी डिजीज है जो फ्लावर में, फ्लावर पार्ट है, फ्लावर प्लांट है, उनमें डिजीज कॉज करती है। द पेस्टिसाइड यूज टू कंट्रोल डिजीज पॉल्यूट द वाटर एंड एनवायरनमेंट। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वी नो वेरी वेल दैट पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, कंट्रोल तो करते हैं डिजीज को, लेकिन पॉल्यूट करते हैं वाटर और एनवायरनमेंट। रिड्यूस क्रॉप यील्ड, यील्ड की क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। कॉजेज फाइनेंशियल लॉस, मनी स्पेंट फॉर प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल। I told earlier that is lot of money spent for plant protection chemicals। Changes agriculture pattern, पहले का पैटर्न कैसा था, आज कितना चेंजेस हो गया है, कितना हजार्डियस यूज होने लग गया है फंजीसाइड्स का। Influence the industries, lack of raw material, some plant disease even change food habit of human populations। Plant protection mainly aim to attain maximum yield by keeping the crop। अब प्लांट प्रोटेक्शन का क्या एम होना चाहिए, मैक्सिमम यील्ड, साथ में क्रॉप हेल्दी रहे और प्रिवेंटिंग द लॉसेज अकरिंग फ्रॉम डिजीज, द मेन एम ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी। हियर वी डिस्कस कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज। अब हम बात करें कौन कौन से कॉजेज हैं जो प्लांट डिजीज कॉज करते हैं। बायोटिक, मीजोबायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मीन्स living organism, like that prokaryote, eukaryote। Prokaryote further divided walled and wallless। Prokaryote in which belong most of bacteria, blue green algae, okay। There is walled means cell wall present, bacteria, blue green algae। Here we talk about wallless bacteria, wallless prokaryote, phytoplasma and spiroplasma। Phytoplasma and spiroplasma। Lack of cell membrane, इनमें क्या होता है, सेल वॉल, सॉरी, lack of सेल वॉल नहीं होती है। Then eukaryote, we also eukaryote, fungi, protozoa, nematode, algae, phanerogomic parasite like that Cuscuta, Orobenchi, Loranthus, Striga, eukaryote। Then mesobitic, virus and viroid are mesobitic, means these are as well as biotic as well as abiotic because of in favorable conditions present like that biotic and unfavorable condition like that abiotic conditions survive। abiotic की अगर हम बात करें, टेम्परेचर, एयर पॉल्यूंट, लैक ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, सॉइल पीएच, न्यूट्रिएंट टॉक्सिटी, पॉल्यूशंस। देयर आर मैनी रीजन टू कॉज डिजीज। लाइक टेम्परेचर की अगर हम बात करें, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो में क्या है, हाई टेम्परेचर, लैक ऑफ ऑक्सीजन। एयर पॉल्यूटेंट की बात करें अगर हम, ईंटों के भट्टों के पास में अगर आम का औचाड़ है तो कौन सी डिजीज रहेगी, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात करें तो जिंक किसकी कमी, जिंक, खैरा, मैनी डिजीज ड्यू टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ओके। सो दीज आर एबायोटिक एजेंट। इम्पोर्टेंट फाइटोपैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, फंजाई, बैक्टीरिया, फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया, मॉलिक्यूल्स मीन्स सॉफ्ट, मॉलिक्यूल्स मीन्स सॉफ्ट टेनेरिक्यूल्स यानी लैक ऑफ सेल वॉल, फाइटोप्लाज्मा एंड स्पाइरोप्लाज्मा। नेक्स्ट वायरस, वायरोइड, एल्गी, flagellated protozoa। First, we discussed about fungi. What is fungi? Fungi are eukaryotic. We discussed earlier.
स्पोर बियरिंग यानी इसमें क्या होगा, स्पोर बनेंगे। एक्लोरोफिलस यानी क्लोरोफिल नहीं होगा। that are generally reproduced by sexually और asexually यानी दोनों रिप्रोडक्शन होंगे, सेक्सुअली भी होगा और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। एंड whose filamentous यानी इसमें फिलामेंटस होंगे जो कि मूवमेंट के काम आते हैं। ब्रांच्ड होगी। सोमेटिक स्ट्रक्चर आर टिपिकली सराउंडेड बाय सेल वॉल यानी प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल। कंसिस्टिंग काइटिन और सेलुलोज और बोथ विथ मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हम बात करें काइटिन, जो ट्रू फंजाई होती है उनमें सेल वॉल काइटिन की होती है, जबकि सूडो फंजाई लाइक दैट स्ट्रामेनापिला, क्रोमिस्टा, in which cell wall composed of cellulose. Bacteria are a prokaryotic. Bacteria are extremely minute, rigid, mostly rod shaped, gram negative mostly, essentially unicellular prokaryotic organism, free of true chlorophyll and generally devoid of any photosynthetic pigment. यानी इसमें photosynthetic pigment नहीं होंगे। Mostly commonly multiply by asexual reproduction, simple transversion binary fission. The resulting cell being of nearly equal in size, two daughter cells equal in size. Bacteria are gram positive and gram negative, but most of bacteria are gram negative, saprophytes and rigid rod shape. These are typical character of bacteria. And one thing is clear, in fungi न्यूक्लिक एसिड यानी कंप्लीट होगा, जबकि इसमें इनकम्प्लीट, बिकॉज ऑफ फंजाई जो यूकेरियोट होते हैं उसमें क्या होता है, हिस्टीन प्रोटीन अटैच होता है, जबकि बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड होता है, इनकम्प्लीट होता है क्योंकि हिस्टीन प्रोटीन एब्सेंट होता है। बात करें हम फास्टिडियस वैस्कुलर बैक्टीरिया। Fastidious vascular bacteria are similar to bacteria in most respect, but are obligate parasite or can't be grown on routine bacteriological media. Vascular bacteria की बात करें तो हम ये vascular में prohibited रहेगा, यानी only आपको कहाँ मिलेगा, xylem और phloem में, vascular part में। Next, molecules means lack of cell wall, soft skin, presence of cell membrane, phytoplasma and spiroplasma. There are also gram positive. Phytoplasma are pleomorphic. Pleomorphic means undulated, means irregular shape. irregular shape क्यों हुई, क्योंकि इसमें rigid cell wall नहीं है, इसलिए ये irregular shape में है। Wallless, सेल वॉल एब्सेंट होगी, प्रोकैरियोट होगा, ग्राम पॉजिटिव होगा, that can infect plant and cannot yet to be grown in culture, but few phytoplasma can be cultured, like on culture media appearance, fried egg appearance, where we talk spiroplasma. Spiroplasma are helical, very important, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हेलिकल शेप के कौन से होते हैं, स्पाइरोप्लाज्मा होता है या फाइटोप्लाज्मा होता है। वॉललेस प्रोकैरियोट, प्रेजेंट इन फ्लोएम ऑफ डिजीज प्लांट, आफ्टर हेलिकल इन कल्चर एंड थ्रो आउट टू बी अ काइंड ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड कैन बी कल्चर ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। वायरस इज सब माइक्रोस्कोपिक ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी माइक्रोस्कोप से भी बहुत छोटा। वायरस को आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट टोटली डिपेंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। वायरस में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। प्रोटीन का कवर होता है और अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड, आइदर आरएनए आइदर डीएनए। ओके, वन एक्सेप्शन, Rice-Tungro-virus, in which case single-stranded RNA and double-stranded DNA both are present. Rice-Tungro-virus, it is very important. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि
वह कौन सा वायरस है जिसमें दोनों आरएनए और डीएनए पाए जाते हैं? सो मल्टीप्लाई ओनली इंट्रासेलुलर, इंटर और इंट्रा, इंटर मीन्स बिटवीन टू सेल्स, इंट्रासेलुलर विद इन सेल एंड इज पोटेंशियली पैथोजेनिक। वायरोइड, अब बात आती है वायरोइड क्या है। वायरोइड स्मॉल होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, यानी इसमें ओनली आरएनए होगा, कैन इन्फेक्ट प्लांट सेल, रेप्लिकेट देमसेल्व्स यानी सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, एंड प्लांट डिजीज, प्लांट में डिजीज कॉज कर सकते हैं। कुछ नहीं है, वायरोइड्स क्या है, स्मॉल लो मॉलिक्यूलर वेट, राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा इसमें, एंड प्रोटीन कवर नहीं होगा, लैक ऑफ प्रोटीन कोट, ओनली आरएनए। एल्गी, एल्गी आर यूकेरियोटिक, photosynthetic, uni or multicellular organism containing chlorophyll and a few algae, mainly green algae, cause plant disease. प्रोटोजोआ की बात करें अगर हम, माइक्रोस्कोपिक होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, यूकेरियोटिक होता है, फ्लैजेलेटा होता है मोटाइल के लिए, सिंगल सेल्ड एनिमल। प्लांट डिजीज, डिजीज मीन्स डिसईज, डिजीज को दो भागों में बांटा है, बोलने में देखो ना, डिसईज यानी लैक ऑफ कंफर्ट, अनईजीनेस। आपको अगर बुखार आता है तो आप क्या इजीनेस फील करते हो क्या? लैक ऑफ कंफर्ट, अनईजीनेस। स्टैकमैन एंड हरर के अकॉर्डिंग 1957, डिजीज इज a physiological disorder or structural abnormality that is harmful to the plant or its part or product which reduce its economic value. Disease क्या है? Physiological disorder है या structural abnormalities है, ये harmful करेगा plant और plant parts को. If we have fever like that, we not comfort, we not do normal activities. Disease is a malfunctioning process that is caused by continuous irritation, which result in some suffering producing symptoms. Example, white rust of crucifer. White rust of crucifer में क्या होता है? इस बार फील्ड में बहुत सारी white rust आई थी, एल्बिगो कैंडिडा। क्या होता है? स्पोरेंजियोस्पोर जो कि व्हाइट कलर के होते हैं, वो ब्रेस्ट हो जाते हैं पस्टूल्स, और कैसा अपीयरेंस होता है? व्हाइटिस यानी सफेद जले हुए फफोले की तरह। Annual losses due to pest. Disease cause 14.1%, यानी 14.1% लॉसेज होता है डिजीज के कारण, इंसेक्ट के कारण होता है 10.2% एंड वीड के कारण होता है 12.2%, मीन्स टोटल 36.5% लॉसेज ड्यू टू पेस्ट, डिजीज, इंसेक्ट एंड वीड्स। सो डिजीज सबसे ज्यादा कॉज कर रहा है 14.1%. टर्मिनोलॉजी, सिम्टोमोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी क्या है ये हमने पहले पढ़ लिया है, हम ज़्यादा नहीं जाएंगे इसमें। अब बात करते हैं पैथोजन क्या है। एन एंटिटी दैट कैन कॉज इनसाइड डिजीज इज कॉल्ड पैथोजन। एग्जाम्पल, पक्सीनिया स्पीसीज कॉज रस्ट ऑफ व्हीट। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कॉज करे डिजीज, वही पैथोजन होता है। डिसऑर्डर, harmful non-pathogenic deviation from the growth and metabolism, means a harmful non-pathogenic means pathogenic नहीं होगा वो, लेकिन harmful होगा growth और metabolism के लिए। Like that, zinc disease of khera, khera disease of rice, black tip of mango. You have clear seen this picture. This is a black tip of mango. This is a khera disease of rice. Predisposing factor या favorable. What are predisposing factor? Various environmental factor which make the plant more vulnerable to attack by a pathogen. Example, optimum temperature, relative humidity, means environmental factor which favorable to disease cause.
जिस एनवायरनमेंट में डिजीज कॉज करने के लिए फेवरेबल हो. इंक्रीज इन ससेप्टिबिलिटी ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर ऑन द होस्ट, यानी ऐसा एनवायरनमेंट जो पैथोजन को वायरुलेंट कर दे, होस्ट को ससेप्टिबल बना दे. देन मोनोसाइक्लिक डिजीज, ओनली वन साइकिल अकरिंग पर सीजन. मोनोसाइक्लिक मीन्स केवल जिसका सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल नहीं हो, ओनली प्राइमरी इन्फेक्शन साइकिल हो और एक साइकिल एक सीजन में करे. लाइक दैट एग्जांपल, स्मट डिजीज डू नॉट कॉज सेकेंडरी इन्फेक्शन, ओनली प्राइमरी इन्फेक्शन. wilt, root rot, etc. are monocyclic disease. Where polycyclic disease complete many cycle in a year, यानी बहुत सारी साइकिल एक साथ एक ही सीजन में कंप्लीट करे. एक होता है पॉलिटिक डिजीज, मीन्स बहुत सालों में केवल एक साइकिल कंप्लीट हो डिजीज की, डच एलम डिजीज. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट टर्म सुनी होगी. Simple interest as well as known as monocyclic disease. Compound interest means polycyclic disease. Simple interest की बात करें यानी सिंपल ब्याज, साधारण ब्याज. कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे भी ब्याज. यानी पॉलीसाइक्लिक डिजीज कैसे बढ़ती है? ब्याज पे भी ब्याज, यानी सेकेंडरी इन्फेक्शन, रिपीट एंड रिपीट. एग्जाम्पल, ब्लैक स्टेम ऑफ रस्ट, लीरिडोस्पोर, रिपीट अगेन एंड again, repeatospore. Disease cycle. What is disease cycle? The chain of event taking place in disease development, including various stage of the pathogen and its preparation from one season to other. वह साइकिल यानी वह चेन जो स्टार्ट करे डिजीज यानी इन्फेक्शन स्टार्ट करे, होस्ट पैथोजन एंटर होस्ट में पेनिट्रेट करे और उसके बाद डिजीज डेवलपमेंट हो जाए, यानी पूरी डिजीज साइकिल, उस साइकिल में क्या क्या हुआ. लाइक दैट सबसे पहले क्या होगा? एंटर करेगा, पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करने के बाद में होस्ट में जाके वो क्या करेगा? स्ट्रक्चरल बैरियर ब्रेक करेगा, केमिकल बैरियर ब्रेक करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, कॉलोनाइज करेगा एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन, कॉलोनाइजेशन बनाएगा, सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे एंड देन सेकेंडरी इन्फेक्शन. क्या स्कोप है प्लांट पैथोलॉजी में? प्लांट पैथोलॉजी कंप्राइज विद द बेसिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बॉटनी, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, निमेटोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियर एंड मेनी अदर ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइंस. Importance of plant disease in which iris potato famine due to Phytophthora infestans 1845. Many million hectare of potato field destroyed due to late blight of potato. Millions people migrate due to and million peoples are dead starvation due to starvation because potato is a staple food in Iris, Europe. So this is very important because epidemic iris famine in Europe 1845, coffee rust Hamelia vestatrix 1867. हम बात करें श्रीलंका में आया ये सबसे पहले. इट इज ऑल्सो एपिडेमिक. कॉफी रस्ट यानी कॉफी का जो ऑर्चार्ड था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था. डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स इन विच प्लाज्मापरा विटिकोला 1879-80 इन फ्रांस और बॉडेक्स मिक्सचर की पीएमए मिला डेट से डिस्कवर्ड हुआ. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज. बंगाल फेमाइन ड्यू टू राइस, हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी, ब्लाइट. दिस इज because rice is a staple food of Bengal. Wheat rust USA में आया. southern corn leaf blight यानी सदर्न में सदर्न दक्षिणी पार्ट में corn leaf blight, Helminthosporium neardis. अब हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास ओनली 1 मिनट बचा है. चलो जल्दी से करते हैं थोड़ा सा.
प्लांट डिजीज कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस सिम्टम्स एंड साइन। सिम्टम्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शंस होती है, यानी बाहर की रिएक्शन और अंदर की रिएक्शन, या चेंज रहता है प्लांट का। रिजल्ट इज ए सिम्टम्स, लाइक इफ यू सी दैट इज ए symptoms, leaf blights are symptoms, early blight of potato is symptoms, coriander stem gone। अब हम साइन की बात करें, मतलब पैथोजन का पार्ट या उसका कोई भी पैथोजेनिकल माइसीरियल पार्ट, स्पोरेंजियो प्रोडक्ट अगर हमको होस्ट प्लांट पे दिखता है, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, स्क्लेरेशियल बॉडी है, बैक्टीरिया का ऊज है, अगर ये हम देखते हैं तो ये क्या है? साइन। देन सिंड्रोम्स, when symptoms or sign are present on the host, which disease characterized by known as syndrome, means white rust of mustard, means lower surface पे आप क्या देखेंगे? स्पोरेंजियोस्पोर, दिस इज ए साइन। अपर सरफेस पे आप क्या देखेंगे? ब्लेस्टर लाइक फफोले। और लेटर स्टेज पे क्या हो जाएगा? स्टैग, मतलब बारह सिंगा जैसा आपको दिखेगा, स्टैग हेड। So class is over because last time नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट अगले उसमें देंगे।